Welcome, my dear students, to another wonderful session on time, speed, and distance. Start करते हैं session, and if you have not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. So in today's session, we are going to take up the topic of trains, the questions based on trains. Okay, so the basic concept remains the same. जो basic हमारे concept है time, speed, distance का वो तो same ही रहेगा. Time into speed, that is equal to distance. And three cases. First case, when distance is same, and in such a case speed will be inversely proportional to time. Second case, when time will be same, so speed will be proportional to distance or distance will be proportional to speed. And third scenario, when speed is same in two cases, so distance will be proportional to time. These are three important cases. Okay, ठीक है. So now what happens, something that we need to understand in case of trains is when they cross some object. So there are three cases when trains crossing another object or body. क्या क्या केस बन सकते हैं? फर्स्ट केस इज when train crosses an object of negligible length. It could be a tree or could be a pole or could be a man. तो स्टेशनरी होगा तो भी सेम कॉन्सेप्ट है, मूव कर रहा होगा तो भी सेम कॉन्सेप्ट है. हमें बेसिकली यहाँ पे ये चेकआउट करना है कि व्हाट विल बी एग्जैक्टली द लेंथ दैट द ट्रेन हैज ट्रैवल्ड. ठीक है, बिकॉज इन एनी केस अ ट्रेन हैज अ लेंथ ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, सो इफ इट इज क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ, यानी कि ऑब्जेक्ट जिसको ये क्रॉस कर रही है वो एक ट्री हो या पोल हो, एक पर्सन हो, या समटाइम्स इट कुड बी अ साइकिल एज वेल. ठीक है, सो इन दैट केस कितना टोटल लेंथ ट्रैवल करेगी ट्रेन? तो इफ दिस इज द ट्रेन, दिस इज अवर ट्रेन, and the length of the train is, let us say, denoted by length of train is denoted by LT. Okay, and this is crossing a pole. So crossing a pole से हम क्या, हमारा क्या मतलब है? I mean जब ये ट्रेन स्टार्ट करी and let us say this is moving in this direction. ठीक है, so जैसे ही ये इसका इंजन ट्रेन का आगे बढ़ना शुरू करता है पोल से, तो ट्रेन क्रॉस करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, थोड़े टाइम बाद इट विल हैपन दैट द ट्रेन विल बी इन द मिडिल. ठीक है, थोड़ा सा लेंथ कम हो रहा है बट समझ लेना. ठीक है, ट्रेन मिडिल में होगी थोड़े टाइम के बाद में, और एंड आफ्टर सम मोर टाइम व्हाट विल हैपन दैट द होल ट्रेन वुड हैव क्रॉस्ड. ठीक है, तो नाउ वी आर श्योर दैट द ट्रेन हैज क्रॉस्ड द इलेक्ट्रिक पोल. क्रॉसिंग का मतलब क्या हुआ? कि पूरी की पूरी ट्रेन पूरा अपना लेंथ क्रॉस कर गई पोल के अक्रॉस. ठीक है, सो टोटल लेंथ ट्रैवल कितना हुआ? इनिशियली ऑब्जर्व करो ट्रेन का इंजन को. ठीक है, फ्रंट पार्ट को ऑब्जर्व करो, किसी भी एक पार्ट को ऑब्जर्व करो. फ्रंट को ऑब्जर्व करोगे तो भी ठीक है, चलेगा. फ्रंट को ऑब्जर्व करो, इनिशियली इट इज एट दिस पोजीशन एंड नाउ इट इज एट दिस पोजीशन. ठीक है, तो द फ्रंट पार्ट हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच, which is nothing but length of the train only. So distance traveled in any such case when it is crossing an object of negligible length, the distance traveled is equal to length of the train itself. ठीक है, अब यहाँ पे पोल के बजाय एक ट्री भी होगा तो भी यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. ठीक है, या फिर एक पर्सन होगा तो भी यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, बिकॉज इनका जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजिबल है. सो दैट इज वाई डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन दैट इज ट्रैवलिंग. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके. सेकेंड केस बिकम्स when train crosses a platform, or it could be a bridge, or it could be a tunnel. And we will be doing some good questions on these. So train is crossing a platform or a bridge or a tunnel. Okay, so in such a case the platform or a bridge or a tunnel has its length. It could be equal to the length of the train,
could be slightly lesser, could be slightly more. So definitely they are not of negligible length. तो इनका लेंथ हमें कंसिडर करना पड़ेगा. We cannot ignore their lengths. ठीक है. So if the length of the train is equal to LT, let us say, and then there is a platform. ठीक है. प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो, लेंथ हो, तीनों के लिए सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. देन देयर इज अ प्लेटफॉर्म. नाउ ट्रेन स्टार्ट कब करेगी क्रॉस करना? व्हेन इट इज जस्ट एट द एज ऑफ द, व्हेन द इंजन इज जस्ट एट द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म. ठीक है. लेट अस से इट इज मूविंग विद स्पीड s एंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज LP. तो दिस इज स्टार्ट. ठीक है. दिस इज स्टार्ट ऑफ द क्रॉसिंग. और एंड कब होगा ये क्रॉसिंग? ये क्रॉसिंग तब एंड होगा जब पूरी की पूरी ट्रेन हमारी क्रॉस कर जाएगी प्लेटफॉर्म को, विच इंप्लाइज the train will be here. It has crossed completely the platform. ठीक है. अगेन सी द फ्रंट पार्ट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. ठीक है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट इट हैज कम टू दिस पॉइंट. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी दिस मच. दिस इज लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड दिस इज लेंथ ऑफ द ट्रेन. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन. बेसिकली प्लेटफॉर्म की बजाय अगर हमारा ब्रिज होगा तो लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, टनल होगा तो लेंथ ऑफ द टनल प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन. तो यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का, ट्रेन का एज वेल एज द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट इट इज क्रॉसिंग, प्लेटफॉर्म, ब्रिज और टनल, उनका भी हमें लेंथ ऐड करना पड़ेगा. दैट विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. इज दैट क्लियर? ठीक है. इसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है केस के, मान लो क्वेश्चन ये कहे कि ट्रेन इज 500 meters away from a bridge. ठीक है. एंड देन ठीक है, एट सम से लेट अस से एट 10 AM and it crosses the bridge completely at 10:02 AM. ठीक है. तो 2 मिनट्स में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 500 मीटर्स एडिशनल हो गया इस क्वेश्चन में, बिकॉज ट्रेन वाज नॉट एट द एज ऑफ द ब्रिज, ट्रेन वाज 500 मीटर्स अवे. ठीक है. इसके बाद में ब्रिज आएगा. So if length of the bridge is, let us say, LB, this is 500 meters and this is length of the train. So in this case total length traveled हमारा कितना हो जाएगा? Length of the train plus length of the bridge plus this extra 500 meters, because क्रॉस करना तो 500 मीटर ट्रैवल करने के बाद ही स्टार्ट करेगी. So this will be some additional point just in case. Okay. और थर्ड एंड लास्ट सिनारियो बनता है when the train is crossing another train. एक्चुअल में ये कोई थर्ड, कोई एक्स्ट्रा सिनारियो नहीं है, ये हमारा सिमिलर सिनारियो है सेकंड केस जैसा ही. कि सेकंड केस में भी ट्रेन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करी थी जिसका अपना भी लेंथ था. तो सिमिलरली यहाँ पे ट्रेन का भी अपना लेंथ था, दूसरी ट्रेन का भी. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी नथिंग बट द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाई टोटल लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स. तो L1 प्लस L2, अगर फर्स्ट ट्रेन का लेंथ है L1, सेकंड का है L2, तो L1 प्लस L2 विल बी अवर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं. लेट अस से सेकंड ट्रेन इज स्टेशनरी. ठीक है. मूव भी करेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट लेट अस से सेकंड ट्रेन स्टेशनरी, हमारा लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज L1, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन इज L2. तो द क्रॉसिंग स्टार्ट्स व्हेन द इंजन पार्ट इज राइट एट द एज ऑफ द सेकंड ट्रेन. ठीक है. एंड क्रॉसिंग एंड्स व्हेन द कंप्लीट ट्रेन हैज क्रॉस्ड द सेकंड ट्रेन. So total length traveled will be this much. This is L2, this is L1, तो L2 plus L1, that is total distance traveled. फिर अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, और फिर बातों को समझते चलते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन. A train crosses an electric pole in 15 seconds. If the length of the train is 300 meters, then find the speed of the train in kilometer per hour. So the train is crossing an electric pole in 15 seconds. Since electric pole का distance is almost zero, length is almost zero, so distance travel will be equal to, distance will be equal to length of the train. Okay, and length of the train is 300 meters, so it is crossing total length of 300 meters, and time taken is 15 seconds. So speed will be equal to distance upon time, which is 300 meters by 15 seconds. So speed will be 20 meter per second.
20 मीटर पर सेकेंड, बट हमें स्पीड बताना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। एंड एज यू कैन रिकॉल कि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। डिस्कस किया था हमने फर्स्ट सेशन में कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, छोटे मेजरमेंट से बड़े में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, ठीक है, याद करने का तरीका। और अगर हम किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड में दो बड़े मेजर में से जा रहे हैं, छोटे में, सो विल बी मल्टीप्लाइंग बाई स्मॉलर वैल्यू 5/18। ओके, यहाँ पे मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाइंग बाई 18/5। तो आंसर विल बी 5 से जाएगा 4 टाइम्स, 18 इंटू 4 72 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी अवर आंसर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train of length 400 meters is running with a speed of 60 km per hour. It crosses the platform in 72 seconds. Find the length of the platform. So speed is given, speed is 60 km per hour. It is crossing a platform in 72 seconds. So when the train is crossing a platform, it is crossing the length of the platform as well as length of the train itself. And train ka length is given, that is 400 meters. So total distance traveled in 72 seconds कितना होगा? That will be length of the platform plus length of the train, and that will be equal to 60 किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस हमें टाइम हमें सेकंड्स में गिवन है, तो 60 इंटू 5/18 एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई 72। 18 से जाएगा 4 टाइम्स, 5 इंटू 4 हुआ 20 इंटू 60, दैट इज 1200 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी इक्वल टू 1200 माइनस लेंथ ऑफ द ट्रेन, and length of the train is 400 meters. So 1200 minus 400, which is equal to 800 meters, will be length of the platform. Clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A train crosses an electric pole in 10 seconds and crosses the platform of length 840 meters in 34 seconds. So you have to find the length of the train. So in the first scenario, the train is crossing an electric pole, and second scenario में ट्रेन क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें गिवन है, ट्रेन का लेंथ हमें पता नहीं है, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके, so in the first scenario, when train is crossing an electric pole, it is covering a distance equal to length of the train, because length of the pole is equal to 0, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेन के इक्विवेलेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और टाइम लग रहा है 10 सेकंड्स का, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट सिनेरियो, द फर्स्ट लाइन इज स्पीकिंग। सेकंड सिनेरियो में द ट्रेन इज क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। इट इज टेकिंग अ टाइम इक्वल टू 34 सेकंड्स। अब इन दोनों सिनेरियोज में क्या चीज कांस्टेंट है, क्या वैल्यू कांस्टेंट है? स्पीड इज कांस्टेंट, बिकॉज ट्रेन का स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है ना, ठीक है। एंड इफ स्पीड इज कांस्टेंट, then we know that distance will be proportional to time, distance will be proportional to time, और टाइम का रेशियो आ रहा है हमारा 10 और 34 का, 10 and 34, 10 in the first scenario and 34 in the second scenario, तो 10:34 का रेशियो है which is 5:17, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही आएगा 5:17 का। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है। और फर्स्ट सिनेरियो में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपना लेंथ ट्रैवल कर रही है, सेकंड में अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ ट्रैवल कर रही है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है दोनों केसेस में? फर्स्ट केस में ट्रेन अपना लेंथ ट्रैवल कर रही है, सेकंड केस में अपना और प्लेटफॉर्म का लेंथ ट्रैवल कर रही है। द डिफरेंस इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, द डिफरेंस इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी कि 12 यूनिट्स का डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 840 मीटर्स। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, 12 यूनिट्स का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 840 मीटर्स, यानी कि 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 70 मीटर्स। तो 5 units is the, this 5 units, this value is the length of the train, because first केस में तो सिर्फ अपना ही लेंथ ट्रेन ट्रेवल कर रही है, तो 5 units की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 into 70 and hence equal to 350 meters. So length of the train will be equal to 350 meters. That will be the answer. क्या बात कह रहे हैं? ठीक है, बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या करना था, जैसे ही हमें आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि स्पीड कांस्टेंट है दोनों केसेस में और टाइम डिफरेंट है, टाइम डिफर कर रहा है और तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो स्टेट में हम देख रहे हैं पहले केस में लग रहा है टाइम 10 सेकंड्स का, यानी कि 10 सेकंड्स में ट्रेन अपना लेंथ ट्रैवल कर रही है, ठीक है। 10 सेकंड्स में ट्रेन अपना लेंथ ट्रैवल कर रही है, बचे हुए 24 सेकंड्स में, भाई 10 सेकंड्स में ट्रेन अपना लेंथ ट्रैवल कर रही है, और सेकंड केस में 10 सेकंड्स तो लग ही रहा है ट्रेन को अपना लेंथ ट्रैवल करने में, प्लस एडिशनल 24 सेकंड्स लग रहा है ट्रेन को, और इन 24 सेकंड्स ट्रेन इज ट्रैवलिंग द लेंथ ऑफ 840 मीटर्स, isn't it so?
24 सेकंड में ट्रेन इज ट्रैवलिंग द लेंथ ऑफ 840 मीटर्स। तो यहाँ से स्पीड निकालना चाहो निकाल सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, बट स्पीड भी निकालना चाहो निकाल सकते हो। ठीक है, 24 सेकंड्स में 840 मीटर्स ट्रैवल करिए तो स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड विल बी 840/24। ठीक है, तो 24 से 3 टाइम्स जाएगा, 72, 35 मीटर पर सेकंड, ये हमारी स्पीड आ गई। बट अदरवाइज ये ऑब्जर्व करोगे कि अगर 24 सेकंड्स में ट्रेन ट्रैवल कर रही है 840 मीटर्स, तो 10 सेकंड्स में कितना करेगी भाई, 24 सेकंड्स में कर रही है 840, 1 सेकंड में करेगी 840/24, और 10 सेकंड में करेगी 840/24 इंटू 10। ठीक है, सो दैट विल बी 350 मीटर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A train passes a 480-meter long platform in 30 seconds and a man standing on the platform in 12 seconds. So what is the speed of the train? ट्रेन क्रॉस कर रही है एक 480 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड्स में, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 12 सेकंड्स। ठीक है, तो व्हेन ट्रेन इज क्रॉसिंग अ 480 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, द लेंथ ट्रेवल्ड इज लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, बट व्हेन इट इज क्रॉसिंग अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, इट इज क्रॉसिंग बेसिकली द लेंथ ऑफ इटसेल्फ ओनली, लेंथ ऑफ द ट्रेन ओनली। इजंट इट सो? है कि नहीं? तो पहले केस में 30 सेकंड्स का टाइम लग रहा है, सेकंड केस में टाइम लग रहा है 12 सेकंड्स का, सेकंड केस में टाइम लग रहा है 12 सेकंड्स का। तो दैट इंप्लाइज कि इफेक्टिवली अगेन यहाँ पे क्या है, स्पीड हमारी कांस्टेंट है, बट इस क्वेश्चन में हमें स्पीड फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। ऐसे समझो 12 सेकंड्स में द ट्रेन इज क्रॉसिंग द लेंथ ऑफ इटसेल्फ, बट इन द फर्स्ट केस टाइम टेकन इज 30 सेकंड्स, which is 12 seconds plus 18 seconds, और 12 सेकंड में ट्रेन इज क्रॉसिंग द लेंथ ऑफ इटसेल्फ, बट 18 सेकंड में ट्रेन क्या क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को। ये तो मतलब हुआ, यानी कि 480 मीटर्स को क्रॉस कर रही है। सो क्लियरली 18 सेकंड्स में अगर ट्रेन इज ट्रैवलिंग 480 मीटर्स, सो स्पीड वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, स्पीड विल बी 480 डिवाइडेड बाय 18, बट दिस स्पीड विल बी मीटर पर सेकंड, और क्वेश्चन पूछा है स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, छोटे से बड़े पे जाएंगे, सो इनटू 18/5 कर देंगे। 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, दिस बिकम्स 480/5, दैट इज 96 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी अवर आंसर, 96 किलोमीटर पर आवर। क्या इन बातों को अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमें ऐसे ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है? ठीक है, हमें प्रॉपर लेंदी अप्रोच से सारी बातों को लेकर कन्वेंशनली सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है। जहां पे हम रेशियो अप्लाई कर सकते हैं वहां पे रेशियो अप्लाई करेंगे, जहां पे और कुछ अंडरस्टैंडिंग अप्लाई कर सकते हैं वहां और कुछ अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करेंगे, जहां पे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं दोनों केसेस में वहां पे डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? और समझ लोगे इन चीजों को तो फिर तुम्हें मजा आने लगेगा इन क्वेश्चंस में, बिकॉज अननेसेसरली हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है? ठीक है, तो बहुत कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, इन्हीं तरीकों को सीखना है, और नए तरीके सीखोगे, इन बातों को समझोगे तो ही क्वेश्चंस को स्मार्टली सॉल्व कर पाओगे और अननेसेसरी चीजों में नहीं उलझोगे। इस क्वेश्चन में हमें स्पीड फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने ऐसे कैलकुलेट किया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें स्पीड नहीं फाइंड आउट करना था, तो हमने इस मेथड से कैलकुलेट कर लिया था कि डिस्टेंस हमारा प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं कि 12 सेकंड्स में ट्रेन अपना लेंथ क्रॉस कर रही थी, 18 में कर रही थी 480, तो अगर मैं ट्रेन का लेंथ निकालना होता है इस क्वेश्चन में तो क्या करते, 18 सेकंड्स में ट्रैवल कर रही है 480, तो 12 में कितना ट्रैवल करेगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू 12 में कितना ट्रैवल करेगी, 12/18 इंटू 480। ठीक है, सो दैट विल 2/3 इंटू 480, यानी कि दिस विल बी 320 मीटर्स। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू 320 मीटर्स। अगर हमें क्वेश्चन में निकालना होता तो ऐसे निकाल पाते। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। A train of length L passes a 720 meter long platform in 45 seconds. If the speed of the train is increased by 20%, find the time taken by the train to cross the same platform. Options are 30 seconds, 36 seconds, 37.5 seconds and cannot be determined. Cannot be determined. Okay. तो क्वेश्चन में हमें ट्रेन की लेंथ गिवन नहीं है, लेंथ L दिया हुआ है, बट L की वैल्यू क्या है ये हमको पता नहीं है। एंड द ट्रेन इज क्रॉसिंग अ 720 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड्स। तो समहाउ हमें प्लेटफॉर्म का लेंथ तो पता है, ट्रेन का लेंथ नहीं पता है, टोटल टाइम भी पता है, बट सिंस हमें ट्रेन का लेंथ पता नहीं है, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी ये हम पता नहीं लगा सकते, बिकॉज स्पीड क्या होगा, स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल विल बी लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 720 meters, which is the length of the platform, divided by 45. ठीक है, सो स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो कि हमको पता नहीं है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म। थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। क्या हम इस क्वेश्चन में टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म पता लगा सकते हैं इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 20%, या फिर नहीं पता लगा सकते? सो इफ द आंसर विल बी सम ऑफ द गिवन ऑप्शंस और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम। देखो यहां पे एक बात समझते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम।
एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम. सो व्हाट इज एवरीथिंग एल्स? ध्यान से बात को समझना. बिकॉज किसी और क्वेश्चन में हमारा डेटा सफिशिएंट है या नहीं है ये पता लगाने के लिए दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या चेंज हो रहा है? द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज दैट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 20%. एवरीथिंग एल्स इज द सेम. तो एवरीथिंग एल्स इज इंप्लाइज कि डिस्टेंस सेम है हमारी. डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 720 मीटर्स. तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है? ट्रेन क्या है ये हमको नहीं पता, बट लेंथ ऑफ ट्रेन रिमेन्स द सेम. जितना पहले था उतना ही अभी भी है. इजंट इट सो? तो चेंज नहीं हो रहा है. चेंज नहीं हो रहा है. किसी और ट्रेन की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर ट्रेन की बात कर रहे हैं जिसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 720 मीटर, दिस डिस्टेंस रिमेन्स द सेम. ठीक है. तो अगर डिस्टेंस हमारा सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम एंड स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. ठीक है. डिस्टेंस क्या है ये मैटर ही नहीं करता है. तो हमें ट्रेन की लेंथ की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में. बस इतना है कि टाइम हमारा स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. और स्पीड का रेशियो में गिवन है क्वेश्चन में. स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड हमारी 20% से इंक्रीज कर रही है, यानी 1/5 से इंक्रीज कर रही है. तो स्पीड अगर इनिशियली 5 थी तो नाउ स्पीड इज 6. फर्स्ट सिनेरियो में स्पीड अगर 5 थी तो नाउ द स्पीड इज 6. तो टाइम का रेशियो एक्जैक्टली ऑपोजिट होगा, 6:5 हो जाएगा. तो इनिशियली अगर टाइम 6 था तो अब हो जाएगा 5. और इनिशियल टाइम की वैल्यू हमें कितनी की है ना? 6 यूनिट्स वाज इक्वल टू 45 सेकंड्स. 45 सेकंड्स. सो नाउ द टाइम विल बी 5 यूनिट्स, यानी कि 5/6 ऑफ 45 सेकंड्स. 30 से काटोगे 2 बचेगा, ऊपर बचेगा 15. तो 75/2 विच इज इक्वल टू 37.5 सेकंड्स. So that will be the time taken by the train in the new condition to cross the same platform. ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा. ठीक है. जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन ये कहता किसी और ट्रेन के बारे में बात करता, ट्रेन की लेंथ भी अपडेट हो जाती, चेंज हो जाती, तो फिर डिस्टेंस हमारा सेम नहीं होता. इन दैट केस वी कुड नॉट हैव आइडेंटिफाइड द आंसर. ठीक है. क्या ये बात कह रहे हैं? ठीक है. बट इस क्वेश्चन में डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज लेंथ ऑफ ट्रेन पे हमारा आंसर डिपेंडेंट नहीं है एज लॉन्ग एज टोटल डिस्टेंस रिमेन्स द सेम. इनफैक्ट हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ भी गिवन थी, इसकी भी जरूरत नहीं है. ये भी नहीं गिवन होता तो फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इन एनी केस टोटल डिस्टेंस रिमेन्स द सेम एज लॉन्ग एज इट इज द सेम प्लेटफॉर्म, इट इज द सेम ट्रेन. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रेन पासेस two bridges of lengths 1000 meters and 700 meters in 50 and 40 seconds respectively. So what is the length of the train? ट्रेन पास कर रही है दो ब्रिजेस को. फर्स्ट ब्रिज का लेंथ है 1000 मीटर्स का एंड सेकंड ब्रिज का लेंथ है 700 मीटर्स का एंड टाइम टेकन इज 50 सेकंड्स एंड 40 सेकंड्स. ओके. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? ओके. इस क्वेश्चन में क्या चीज है जो कि कांस्टेंट है? क्या डिस्टेंस सेम है? नो, डिस्टेंस इज नॉट सेम बिकॉज फर्स्ट केस में ट्रेन इज पासिंग अ ब्रिज ऑफ 1000 मीटर्स, सेकंड केस में ट्रेन इज पासिंग अ ब्रिज ऑफ 700 मीटर्स. क्या यहाँ पे हमारा टाइम सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है. टाइम भी डिफरेंट है. बट स्पीड सेम. स्पीड तो सेम है दोनों केसेस में. इजंट इट? तो स्पीड को इक्वेट करते हैं. तो वी नो दैट स्पीड इज सेम इन बोथ केसेस. ओके. एंड इफ स्पीड इज सेम दैट इंप्लाइज कि डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम. और टाइम का रेशियो हमें गिवन है. टाइम का रेशियो कितना है? 50 सेकेंड्स फर्स्ट केस में है, 40 सेकेंड्स दूसरे केस में. तो रेशियो आ रहा है हमारा 5:4 का. यही सेम रेशियो डिस्टेंस का भी आएगा 5:4 का. बट डिस्टेंस हमारा क्या है? क्योंकि ब्रिजेस क्रॉस कर रही है. फर्स्ट केस में कितना डिस्टेंस होगा? 1000 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, दिस इज अवर डिस्टेंस. और सेकंड केस में डिस्टेंस क्या होगा? 700 मीटर्स प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन. ओके. तो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? डिफरेंस इज ऑफ 1 यूनिट. डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का. और इन दोनों केसेस में डिफरेंस कितना आ रहा है? दिस डिफरेंस इज लेंथ ऑफ ट्रेन तो दोनों केसेस में सेम है. डिफरेंस हमारा आ रहा है जो कि प्लेटफॉर्म की लेंथ का डिफरेंस है, यानी कि दिस डिफरेंस ऑफ 300 मीटर्स. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 300 मीटर्स. ये हमें पता चल गया. यही तो फर्क है, और तो कुछ फर्क नहीं है. तो जितना हमारा ब्रिजेस की लेंथ में डिफरेंस है वही हमारा 1 यूनिट आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा. क्लियर? तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 300 मीटर्स. सो क्लियरली 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी. 5 इंटू 300 विच इज इक्वल टू 1500 मीटर्स. तो 1500 मीटर्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 1000 मीटर्स जो कि लेंथ है ब्रिज की. तो यहां से हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन मिल जाएगा विच विल बी इक्वल टू 500 मीटर्स. लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी 500 मीटर्स. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
The question is saying ratio of length of two trains is 5:3 and ratio of their speeds is 6:5. If the second train crosses an electric pole in 27 seconds, then find the time taken by the first train in crossing a man standing on the platform. सेकेंड ट्रेन क्रॉस करी एक इलेक्ट्रिक पोल को, तो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड ट्रेन इज क्रॉसिंग इट्स ओन लेंथ विच इज लेट अस से L2 और फर्स्ट ट्रेन इज क्रॉसिंग अ मैन. तो फर्स्ट ट्रेन इज क्रॉसिंग अ मैन ओनली, सो इसका ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, लेंथ ऑफ इट्स ओन, इजंट इट सो? ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो सिर्फ और सिर्फ मैन को क्रॉस करिए, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के बारे में बात नहीं हो रहा है. सो क्लियरली द सेकंड फर्स्ट ट्रेन इज क्रॉसिंग द लेंथ ऑफ इटसेल्फ ओनली. क्लियर है? ठीक है, हमें रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन 5:3 का रेशियो है. रेशियो ऑफ द स्पीड्स इज गिवन 6:5 का रेशियो है. और हमें सेकेंड ट्रेन के केस में टाइम की वैल्यू भी गिवन है, टाइम की वैल्यू भी गिवन है. तो फर्स्ट ट्रेन के लिए क्या टाइम लगेगा ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दैट स्पीड्स का रेशियो हमें गिवन है. स्पीड्स का रेशियो कितना आ रहा है, दैट इज 6:5 फॉर ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2. सेकेंड इज रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन इज ऑल्सो गिवन. तो लेंथ का रेशियो आ रहा है 5:3 का, and length is equal to distance traveled by the trains in this case. Okay, तो length is equal to distance traveled. तो टाइम का रेशियो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, बिकॉज अल्टीमेटली हमें वैल्यू गिवन है टाइम का ही, तो टाइम का रेशियो यहां से निकाल सकते हैं. टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, तो डिस्टेंस इज 5 इन द फर्स्ट केस, स्पीड है 6, 5/6 आ जाएगा रेशियो में वैल्यू, और सेकेंड केस में वैल्यू आ जाएगा 3/5. अब इस फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, तो 6 × 5 30 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में आ रहा है 6 और आ रहा है 5. 6 × 5 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशियो हमारा आ जाएगा 5 × 5 25 इन फर्स्ट केस, और सेकंड केस में वैल्यू आ जाएगा 6 × 3 दैट इज इक्वल टू 18. तो 25:18 का रेशियो आ गया हमारा फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन का टाइम टेकन का. और सेकंड ट्रेन इज क्रॉसिंग इलेक्ट्रिक पोल इन 27 सेकंड्स, यानी कि 18 यूनिट्स की वैल्यू आ रही है 27 सेकंड्स. तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगा 1.5 सेकंड्स, 27/18 यानी कि 1.5 सेकंड्स. So first train will be crossing a man standing on the platform in 25 units time, यानी कि 25 into 1.5 seconds, that will be 37.5 seconds. So this will be our answer. A very beautiful and simple question. 37.5 seconds will be the answer. Is that clear? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So the question is saying a train is running at the speed of 96 km per hour. It takes 6 seconds to enter the tunnel, and in 30 seconds time the train passes through the tunnel completely. Find the length of the train and tunnel respectively. Okay, we have to find the length of the train as well as the tunnel. 6 seconds में ट्रेन टनल को एंटर करती है और 30 seconds के टाइम में ट्रेन पूरा का पूरा टनल को completely पास करती है. ठीक है, तो what does the question mean by train enters the tunnel in 6 seconds? इस बात का मतलब क्या हुआ, देखो let us say this is the tunnel. Okay, तो ट्रेन एंटर कब करेगी, एंटर करना कब स्टार्ट करेगी, जब इसका जो इंजन है ट्रेन का दैट विल बी समवेयर हियर, इजंट इट? ठीक है, समवेयर हियर. और थोड़ा छोटा कर देते हैं ट्रेन को. ओके, दिस इज व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स एंटरिंग द टनल. और कंप्लीटली कब एंटर कर जाएगी, जब ये पूरी की पूरी ट्रेन इनसाइड द टनल हो जाए. Okay, now this is completely inside the tunnel, so this is the distance traveled in that time. Distance traveled is equal to length of the train only, isn't it so? Distance traveled है length of the train के बराबर. So 6 seconds में train is traveling only its length, only equivalent to its length, and speed is given 96 km per hour. तो सबसे पहला काम स्पीड को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में. तो स्पीड आ जाएगा हमारा 96 into 5/18, 6 से जाएगा 16 बचा, यहाँ पे बचा 3, 80/3 मीटर पर सेकेंड, 80/3 मीटर पर सेकेंड.
सो लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू 6 सेकंड में ट्रैवल किया है 80/3 इंटू 6, so length of the train is equal to 160 meters. That is our first observation. And in 30 seconds time the train is passing the tunnel completely. Completely कब पास करेगी ट्रेन टनल को, जबकि पूरी की पूरी जो हमारी ट्रेन है वो टनल से बाईपास कर जाएगी, टनल से बाहर निकल जाएगी, which implies जब हमारी ट्रेन एग्जैक्टली यहाँ पे होगी। ठीक है, ऑब्जर्व करो इंजन को। तो फर्स्ट केस में हमारा ट्रेन एंटर करना यहाँ पे स्टार्ट किए और यहाँ पे फिनिश हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, दिस इज द लेंथ ऑफ द टनल। ठीक है, टनल का लेंथ है प्लस दिस इज लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्लियर है? ठीक, तो टोटल लेंथ ट्रैवल किया है, लेंथ ऑफ द टनल प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 30 सेकंड्स के टाइम में, 30 सेकंड्स में के टाइम में। अब या तो दोबारा अपना टाइम वेस्ट करो या सिंपल सी बात समझ लो, 6 सेकंड्स में ट्रेन ने अपना लेंथ ट्रैवल किया था और टोटल 30 सेकंड्स में ट्रेन ने अपना लेंथ तो ट्रैवल किया ही किया है, प्लस टनल का भी लेंथ ट्रैवल किया है, विच इंप्लाइज कि 24 सेकंड्स में ट्रेन ने ट्रैवल किया है टनल का लेंथ, ये तो मतलब हुआ इसका। और 6 सेकंड्स में अपना किया है, 6 सेकंड्स में ट्रेन ट्रैवल करती है 160 मीटर्स, 24 सेकंड्स में कितना करेगी, 4 टाइम्स करेगी, 4 टाइम्स करेगी तो 160 इंटू 4, लेंथ ऑफ द टनल विल बी 640 मीटर्स। ठीक है, अदरवाइज रेशियो मिल जाता, अगर 24 की बजाय 25 होता तो भी रेशियो मिल जाता। 25 होता, हमें पता है कि 6 सेकंड्स में ट्रेन कर रही है 160 ट्रैवल कर रही है, तो 25 में कितना करेगी 25/6 इंटू 160, 25/6 इंटू 160, तो वहां से भी हमें वैल्यू मिल जाता, हमें दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो आवर आंसर विल बी 160 मीटर इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, 640 मीटर इज द लेंथ ऑफ द टनल। क्लियर? ओके, सो इतना ही रखते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस सेशन में इतना ही रखते हैं। और दिस लास्ट क्वेश्चन, कमेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई बिलीव कि सेशन में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया वो समझ में आएंगे और कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई भी बेसिक सा डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन कमेंट अबाउट दैट डाउट। मेक श्योर जब भी कमेंट करो किसी डाउट के लिए तो टाइम स्टैम्प जरूर मेंशन करो। ठीक है, टाइम स्टैम्प तुमको मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 12 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स पे, तो बस इतना 12:36 मेंशन कर दो, तो क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज एक्जैक्टली उस पोजीशन में पहुंच के तुम्हारा डाउट क्लैरिफाई किया जा सकता है। ठीक है, सो बस मेक श्योर टू अबाउट दैट, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई बिलीव सेशन पसंद आओ, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना है, साथ में अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना। चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।